Okay, ji. Is the screen still visible? Okay. Okay, ji. We are done with first two chapters. First was introduction to entrepreneurship, and then we studied chapter number two, which was mainly about ideas and opportunities. So now we shall discuss the chapter three. This is the chapter three of the book, which I've already shared with you. So now we shall discuss the feasibility analysis. Okay. So these are the objectives of this chapter. Okay, what is a feasibility analysis? A feasibility analysis is the process of determining whether a business idea is viable or not. Okay, so let's see. Okay, so you have an idea. Okay, आपके पास एक idea है. You also have an opportunity. Now you have decided that you want to utilize this opportunity by using this idea and make a business out of it. But now the problem is that कि इन दोनों चीज़ों के होते हुए भी is still that business feasible to you. ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. बज़ाहिर कभी कभार सम आइडिया में बी अ गुड वन. ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी हो, बट इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट मे नॉट वर्क. ओके, so to study that we have this thing called feasibility analysis. Okay, so it is the preliminary evaluation of business idea conducted for the purpose of determining whether the idea is worth pursuing or not. ठीक है, आपका आइडिया तो है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, क्या उसे परस्यू करना चाहिए? दैट इज अबाउट द फिजिबिलिटी एनालिसिस. ओके, सो okay, I think I should shift to the PowerPoint slides. Yes. अच्छा जी, विजिबिलिटी है स्क्रीन की, दोबारा मुझे बता दें. सबको स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? Okay. Okay, so when to conduct a feasibility analysis? When do we want to conduct this feasibility analysis? अच्छा, ये चीज़ क्या है? How do we conduct it? वो अभी आगे आएगा. Okay. So first is the timing of feasibility analysis. The time when we should conduct it. The proper time to conduct a feasibility analysis is early in the thinking through the prospects of for a new business. ठीक है. First of all, ये आप मतलब स्टार्ट ऑफ जब व्हेन यू हैव दैट आइडिया, एट दैट पॉइंट यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट द फिजिबिलिटी एनालिसिस. ठीक है, द थॉट इज टू स्क्रीन आइडियाज बिफोर अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर स्पेंट ऑन देम. ओके, सो इंस्टेड के आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज स्पेंड कर दें किसी आइडिया पर, उससे पहले आपको फिजिबिलिटी एनालिसिस बता देगा कि आइदर यू शुड गो विद इट और नॉट. Okay, so components of a properly conducted feasibility analysis. A properly conducted feasibility analysis includes four separate components as discussed in the following. ठीक है, सो अभी चार कंपोनेंट्स हैं इस फिजिबिलिटी एनालिसिस के जो हम डिस्कस करेंगे. एंड अ गुड बिजनेस शुड have all those four parts of the feasibility analysis checked. ठीक है, सो ये चार कंपोनेंट्स हैं. ये चार कंपोनेंट्स हैं, ये चारों के चारों आप समझ लें कि दीज आर लाइक टेस्ट्स. ठीक है, और ये चारों के चारों आपके बिजनेस आइडिया ने क्लियर करने हैं टू गेट इट सेल्फ द नेम ऑफ अ गुड बिजनेस आइडिया. ठीक है, या फॉरवर्ड मूव करने के लिए आपको ये चारों चेक्स होना जरूरी है. ओके,
सो वो कौन कौन से वो भी हम आगे देखें. द रोल ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस इन डेवलपिंग बिजनेस आइडियाज. ओके, प्रपोज बिजनेस वेंचर, spending the time and the resources necessary to move forward with the business idea depends upon. ठीक है. इसके बाद जो चार चीजें हैं ना जिस पर अभी हम बात करेंगे वो ये चार. That is product service feasibility, industry target market feasibility, organizational feasibility, and at the end financial feasibility. ओके. सो ये चार टिक मार्क्स हैं जो आपने टू गिव अ हेड्स अप टू योर बिजनेस, ये चारों आपके टिक्स होना जरूरी. ओके. यस, अगर यस इन ऑल फोर एरियाज, प्रोसीड विद द प्लान. अगर चारों एरियाज में आपका ओके है सिस्टम जो सारा बिजनेस का, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. नो इन वन और मोर एरियाज, ड्रॉप और रिथिंक द बिजनेस आइडिया. अगर इसमें से किसी एक में भी आपका नो है, okay, then you will have to either drop the business idea or you will have to rethink about it. Okay. So we shall start with forms of feasibility analysis. आपकी कौन कौन सी हैं? The first one is product service feasibility. Okay, we shall study it first, then we will move towards industry and target market feasibility. Then we shall discuss the organizational feasibility and at the end financial feasibility. Okay. So, outline of a comprehensive feasibility analysis. Okay, so this is an outline for the comprehensive feasibility analysis. ये प्रॉपर आपका एक डॉक्यूमेंट बनता है. ओके. आपने शायद नाम सुना भी होगा फिजिबिलिटी एनालिसिस का. तो ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है आपका एक पूरा. ठीक है. एंड दिस डॉक्यूमेंट ये फिर आपका आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास जाता है. And they see, they analyze this feasibility analysis. ठीक है. So the first part normally is प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी. ओके. उसके अंदर प्रोडक्ट डिजायरेबिलिटी एंड देन डिमांड आ जाता है आपके पास. वी शैल सी, अभी हम ये सारा देखेंगे. ठीक है. देन वी हैव industry and targeted market feasibility. We shall see what is industry attractiveness and what is target market attractiveness. Then organizational feasibility, जिसके अंदर मैनेजमेंट प्रोग्रेस एंड रिसोर्स सफिशिएंसी आ जाएगा. फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, टोटल स्टार्टअप कैश नीडेड एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड सो ऑन. अभी हम आगे देखते हैं. एंड एट द एंड वी विल डिस्कस द ओवरऑल असेसमेंट ऑफ दिस एनालिसिस. ओके. So the first part of feasibility analysis is product या service feasibility analysis. So this depend के either you are providing a product or some service. Okay. So what is the purpose of this first feasibility analysis? First part of feasibility analysis. A purpose is an assessment of overall appeal of the product or service being proposed. Okay. So first of all, we should know कि what आपके ज़हन में जो आइडिया आया है प्रोडक्ट का या सर्विस का. ओके. यू हैव दैट आइडिया, आप समझते हैं कि इट इज़ वेरी गुड, बट वेदर इन रियलिटी वो उसकी कोई अपील है भी या नहीं इन द मार्केट. ओके. सो वी शैल assess this uh, aspect at the top of the feasibility analysis. Before a prospective firm rushes a new product or service into development, it should be sure that the product or service is what prospective customers want. ठीक है. So ये either they want this product or not, ये ज़रूरी चीज़ है. Okay. सो कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, इस फिजिबिलिटी एनालिसिस के फर्स्ट पार्ट के यानी कि प्रोडक्ट सर्विस फिजिबिलिटी के दो कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट डिजायरेबिलिटी एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्ट डिमांड. ओके. वन थिंग इज डिजायरेबिलिटी, वन थिंग इज डिमांड. ओके. How much, so what is desirability? How much people want a product because it seems cool or exciting. So this is desirability. Okay. Desirable कोई product होना. For example, an iPhone is a desirable product, right? Normally, every person
नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, बट नॉर्मली आजकल का एक जो स्टेटस सिंबल बना हुआ है दैट इज़ एन आईफोन। ओके, मोबाइल फ़ोन्स की अगर हम बात करें, सो डिज़ायरेबिलिटी तो काफ़ी है। बट जब हम डिमांड की तरफ आते हैं पाकिस्तान, मे बी दैट डिमांड इज़ वेरी लेस बिकॉज दैट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द अफोर्डेबिलिटी। ओके, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी कि क्या उस प्रोडक्ट अफोर्डेबल है वो आपके लिए। ठीक है, आप स्टूडेंट्स हैं, 22 स्टूडेंट्स, तो मे बी आप सब आईफोन चाह रहे होंगे। ठीक है, चाह तो है, आपका डिज़ायर तो है, बट क्या वाकई डिमांड भी है? मतलब आपके सामने अगर आईफोन ला कर रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको परचेज करें, तो विल यू बी एबल टू परचेज दैट? दैट इज द डिमांड। हाउ मैनी पीपल एक्चुअली बाय अ प्रोडक्ट influenced by factors like price, availability and consumer preferences. ओके, सो इसमें एक मेजर रीजन आपका प्राइस का होता है। डिजायर डिजायर अगर है आईफोन की, डेफिनेटली उसमें फिर ये अवेलेबिलिटी, चलें अवेलेबिलिटी भी आ जाएगी, लेकिन साथ में कंज्यूमर प्रेफरेंसेस तो होंगी, तभी तो डिमांड है उसकी, राइट, डिजायरेबिलिटी। बट प्राइस विल प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। प्राइस विल डिसाइड। बेशक हम यहाँ लाकर 5 लाख आईफोन यूनिवर्सिटी में रख दें, ओके, प्राइस होना ज़रूरी है तभी बाय कर सकते हैं। ओके, सो प्रोडक्ट सर्विस डिजायरेबिलिटी में हम क्या चीज़ देखते हैं? ओके, first ask the following question to determine the basic appeal of the product. Okay, so that are, does it make sense? Is it reasonable? Is it something consumers will get excited about? ओके, सो पहले तो क्वेश्चन जी हमारा, हम अभी हम डिजायरेबिलिटी की बात कर रहे हैं, डिमांड की नहीं बात कर रहे। ओके, देन डज इट टेक एडवांटेज ऑफ एन एनवायरमेंटल ट्रेंड, सॉल्व अ प्रॉब्लम और टेक एडवांटेज ऑफ अ गैप इन द मार्केट प्लेस। फिर हम डिजायरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ भी देखेंगे कि क्या ये किसी इन्वायरमेंटल ट्रेंड का एडवांटेज ले रहा है, या ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या ये कोई किसी मार्केट प्लेस का जो गैप है उसको ये सॉल्व कर रहा है, या उसको ये फिल कर रहा है, दिस प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, इज दिस अ गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट? देन अगेन दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, so is it a good time or not? For example, in the current scenario where the petrol or overall fuel prices are hiking, okay, और अभी हमें कुछ पता नहीं कि आगे क्या होना है, so maybe if some kind of e-bike, okay, which is very which requires very less charging time and electric energy, this is a good time to launch such product। ओके, बट मे बी कहीं पर ऐसा ना भी हो। Okay? कहीं पर इसको, या इसी की अगर हम बात करें तो अभी एक सच अ कन्वेंशनल कार विच रन्स ऑन फ्यूल हैज़ गुड, यू नो, माइलेज भी अच्छी है, ईच एंड एवरीथिंग इज गुड, बड़ी लग्जरियस किस्म की गाड़ी है, बट द टाइम टू लॉन्च दैट कार may not be good at this point, right? So, are there any fatal flaws in the product or services, basic design on or concept? So, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी desirability की umbrella में, right? Second, administer a concept test. Okay, this normally is a good thing. Concept test. A concept statement should be developed about the product or service. Okay, a concept statement is one page description. जब चीज क्या, concept statement is a one page description of a business that is distributed to people who are asked to provide feedback on the potential of the business idea. For example, अभी पिछली एग्जाम्पल की मैं कोट करता हूँ, यू हैव दिस ई बाइक, ओके, नाउ यू आर यू हैव मेड अ पोस्टर, सिंगल पेज पोस्टर, ई बाइक्स इंक्रीजिंग फ्यूल डिमांड, इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस आ गई आपकी। ओके, उस ये मेंशन कर दें, ई बाइक इज़ अ बेटर ऑल्टरनेटिव, माइलेज बता दें उसकी कि हाउ मच इन वन चार्ज इट कैन रन, और फलां कुछ चीज़ें और भी बता दें।
इट इज अ सिंगल, मतलब ये समझ लो वन पेज डिस्क्रिप्शन है। इट इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। ओके, जिस तरह आप थीसिस में एब्स्ट्रैक्ट राइट करते हैं ना, तो दिस इज द समरी ऑफ द प्रोडक्ट विच यू विल लॉन्च। सो उससे आपको फीडबैक मिलेगा कि वेदर in reality people want that product or not in the current scenario. Okay, so this will be a direct feedback to you. Okay, so the feedback will hopefully provide the entrepreneur about what क्या चीज़ें होंगी, a sense of viability of the product or service idea, suggestions for how the idea can be strengthened or tweaked before proceeding further. ओके, शायद आपके जहन में जो ई बाइक वाला आइडिया बड़ा अच्छा अभी इस टाइम पर हो, बट कोई आपसे ये कहे कि मे बी देर इज अ चांस कि क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस या फ्यूल प्राइसेस हाइक कर रही हैं, ओके, और इंक्रीज तेजी से इंक्रीज आ रहा है इस हाइक में, सो मे बी कि लोड शेडिंग वाला इशू आ जाए। ओके, लोड शेडिंग की वजह से डेफिनेटली आपको चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। सो आप ऐसा करें कि इसके लिए कोई इसके साथ सोलर पैनल्स कोई इंस्टॉल कर दें इसी बाइक्स में। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो ताकि वो डायरेक्ट चार्ज होती रहे फ्रॉम द सन एज वेल। ओके, सो जस्ट आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल। ओके, सो दिस कुड बी अ फीडबैक, सो आप वो ट्वीकिंग कर सकते हैं उसमें। ओके, प्रोडक्ट सर्विस डिजायरेबिलिटी। ओके, न्यू वेंचर फिटनेस ड्रिंक्स कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट। ओके, सो दे ये एक एग्जांपल देगी आपको। ये इट इज़ अ न्यू वेंचर फिटनेस ड्रिंक। ओके, so let's see, this is that one pager concept। okay, so product क्या आपके पास, न्यू वेंचर फिटनेस ड्रिंक्स विल सेल डिलिशियस न्यूट्रिशन फिल्ड ऑल नेचुरल फिटनेस ड्रिंक्स टू थर्स्टी स्पोर्ट्स एंथुजियाजिस्ट। ठीक है, तो जो आपके मतलब इसका मतलब ये है कि जिम गोइंग स्पोर्ट्स करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये हेल्दी ऑल नेचुरल फिटनेस ड्रिंक सेल करेगा। द ड्रिंक्स विल बी सोल्ड थ्रू स्मॉल स्टोर फ्रंट्स, स्मॉल स्टोर फ्रंट्स होंगे आपके, दैट विल बी द सेम साइज एज पॉपुलर स्मूदी रेस्टोरेंट्स। ओके, द ड्रिंक्स वर फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर फिलिप्स विलियम पीटर्स, अ वर्ल्ड रिनोन्ड न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, सो ये सारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई है। ओके, अब इसमें टारगेट मार्केट आपकी क्या है, ये आगे हम देखते हैं व्हाट इज दिस टारगेट मार्केट। सो दिस टारगेट मार्केट is in the first 3 years of operation, new venture fitness drinks plan to open 3 or 4 restaurants. Okay, they will be located near large sports complexes that contains soccer fields and softball diamonds। द टारगेट मार्केट मार्केट जो आगे आगे, ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंथुजियासिस्ट जो है आपके, वो आगे आपके टारगेटेड मार्केट। ठीक है, दिस डजंट मीन कि आपके एक नॉर्मल जो कोई वर्कर बंदा है, ठीक है, कोई टीचर या कुछ, उसके लिए टारगेटेड मार्केट है। मे बी वो भी इसको बाय करें, बट देर इज अ लेस चांस कि इन रीजन्स में, यानी कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में कोई टीचर वहाँ पर मौजूद हो। ओके, मे बी कोई फिटनेस पसंद करने वाला टीचर हो, ठीक है, तो मे बी वो वहाँ भी चला जाए। ठीक है, बट नॉर्मली जो स्पोर्ट्स प्लेयर जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ओके, सो वाई न्यू वेंचर फिटनेस ड्रिंक्स, अगेन वाई, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको डिटेल से बता दी गई है कि वाई वी नीड दिस। उसमें डिफरेंट उन्होंने चीज़ें कोट की हैं विच यू कैन रीड बाय योरसेल्फ समझने के लिए। ठीक है, ये कोई रटे नहीं लगाने हैं हमने, प्लीज इस बात को क्लियर कीजिएगा। स्पेशल फीचर, नो अदर रेस्टोरेंट डज दिस। अब देखें, वाई तो बता दिया उसने, अब वाई को भी जरा स्पेशलाइज करने के लिए स्पेशल फीचर क्या है। अ स्पेशल फीचर न्यू वेंचर fitness drinks will videotape select sporting events that take place in the sport complexes near its restaurants and will replay highlights of the games on video monitors on their restaurant। Okay, so this thing they are doing something special। वो क्योंकि they are opening that shop, small shop near some sports complex, तो वहां पर जो भी मैच, जो भी स्पोर्ट्स का मैच हुआ, उसको वो वीडियो टेप करके
और आफ्टर दैट दे विल प्ले एज हाइलाइट्स इन देयर शॉप्स। तो जहाँ पर जो जूस पीने के लिए आएगा, जो स्पोर्ट्स पर्सन, वो उन हाइलाइट्स को देख सकेगा। ओके, सो ये ग्रैब करने के लिए ऑडियंस को। ओके, दिस स्पेशल फीचर विल अलाउ स्पोर्ट्स enthusiasts फ्रॉम किड्स प्लेइंग सॉकर टू अडल्ट्स इन सॉफ्ट बॉल, सब वहाँ आएंगे, ठीक है, शौक से आएंगे, just to get that those highlights. Okay, अच्छा, मैनेजमेंट टीम क्या आ जाएगी आपके पास? न्यू वेंचर फिटनेस ड्रिंक्स led by co-founders Jack Petty and Peggy Wills. Jack has 16 years of experience in national restaurant chains, and Peggy is a certified public accountant with 7 years of experience. So ये आपकी मैनेजमेंट टीम है, अभी हम आगे देखेंगे। ओके, ओके, सो अब हम बात करते हैं, दिस इज दैट वन पेज डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस। ओके, सो आई होप एट टिल दिस पॉइंट यू आर क्लियर। अच्छा, काइंडली मुझे एक बार रिमाइंड करा दें कि आप सबको आवाज़ आ रही है। अगर किसी को कोई इशू हुआ तो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी मैसेज कर सकता है। मैंने मोबाइल पर व्हाट्सएप का ग्रुप ओपन किया हुआ है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ आप मुझे बता सकें। ओके, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट सर्विस डिमांड की। देर आर टू स्टेप्स ऑफ असेसिंग प्रोडक्ट सर्विस डिमांड। डिजायरेबिलिटी की पहले बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं डिमांड की। अच्छा, वो कैसे कर सकते हैं? देर आर टू स्टेप्स। नंबर वन इज टॉकिंग फेस टू फेस विद पोटेंशियल कस्टमर्स। ओके, सो डेफिनेटली अब यहाँ पर पोटेंशियल कस्टमर्स आपके कौन से होंगे? दीज आर द स्पोर्ट पर्सन्स, ठीक है, या कोई जिम गोर्स जो हैं उनके, दे हैव, डेफिनेटली आपको वहाँ जाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर उनसे फेस टू फेस डिस्कशन करनी पड़ेगी। नंबर वन इज दिस। नंबर टू स्टेप, यूजिंग ऑनलाइन टूल्स सच एज गूगल एडवर्ड्स, लैंडिंग पेजेस टू असेस डिमांड। यानी कि आप बाय यूजिंग गूगल एडवर्ड्स आपको पता चल जाए ऑनलाइन टूल्स के थ्रू कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ दीज पीपल। ओके, सो दीज टू आर द स्टेप। सो नंबर वन, पहले को एक्सप्लेन करते हैं। टॉकिंग फेस टू फेस विद पोटेंशियल कस्टमर्स। The only way to know if your product or service is what people want is by talking to them. This is definitely one of the most easiest things, और ये डायरेक्ट आपको फीडबैक मिलता है, इसमें कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट उनसे अपना फीडबैक ले रहे हैं। The idea is to gauge customer reaction to the general concept of what you want to sell, and tweak, revise, and improve on the idea based on the feedback. Okay. In some cases, talking with potential customers will cause an entrepreneur to abandon an idea. ऐसा भी होता है, ठीक है। Sometimes जो potential customers हैं, उनके साथ बात करने के बाद you realize कि your idea is not worth it. Okay, या there is something wrong, तो आप उसको abandon कर दें। Entrepreneurs are often surprised to find that a product idea they think solves a problem gets lukewarm reception when they talk to actual customers. ठीक है, सो हम नॉर्मली, हमारे दिमाग में आइडिया बड़ा अच्छा होता है, बट समटाइम्स उसकी जो, जब जब हम उनके पोटेंशियल कस्टमर से बात करते हैं, सो वी डोंट गेट दैट अप्रिशिएशन। ओके, सो गारंटीड नहीं है कि इसके बाद आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिले। Okay, online tools. How can we do this? The second way to assess demand is to utilize online tools to gauge reaction from potential customers. Some entrepreneurs purchase text ads on search engines that show up when a user is searching for a product that is close to their idea. ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अभी भी, मतलब अभी आप कोई चीज़ सर्च करें एंड यू विल गेट दिस थिंग। ओके, इसकी एग्जांपल, मैं, ये कंपनी है, इंस्टाग्राम पे ही है, वो ऑर्गेनिक इन के नाम से। ओके, सो उनका मेरे सामने एक बार पीनट बटर का ऐड आया था। दे सेल पीनट बटर, हेल्दी, पाकिस्तान की कंपनी है और बड़ा ही हेल्दी पीनट बटर सेल करते हैं। सो मैंने जस्ट वो उसको सर्च किया इंस्टाग्राम पे,
उसके बाद मेरी गूगल की एड्स पे, फेसबुक, इंस्टा, इवन के अब तो टिकटॉक वगैरह पे भी डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ पीनट बटर शो होना शुरू हो गए। ओके। या आप ये ना भी करें, आप जस्ट राइट करें, अभी जाकर कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि गूगल पर राइट करें फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय सम हेल्थ बैंड या कुछ ऐसा, ठीक है, फिट बैंड जो होता है, उसके बाद आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगे, राइट, एवरीवेयर, मतलब आप तंग पड़ जाते हैं, राइट। सो दैट इज डन बाय दिस समथिंग, दिस दिस इज द अप्रोच। ओके, हो सकता है अभी हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं इसके बाद ही हम अभी तो ऐसा भी होने लग पड़ा है, ठीक है, आप दो फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ बाय करते हैं, एंड यू विल गेट द एड्स, सो गूगल इज लिसनिंग टू अस, ठीक है। If the searcher clicks on the text ad, they are directed to the landing page that describes the audio. Okay, so ये आपको आगे you have that idea कि how this works. ठीक है, so I will not explain it in very detail. Utilizing okay, इसी का a variety of additional online tools are available to help assess the demand of new product or service. The first one is sites that provide feedback on business ideas. Founder site Quirky. Okay, so ये business ideas पर feedback provide करते हैं. So some entrepreneur और कोई भी person है वो अपना business idea लेकर जाता है on this website, on these two websites या इसके अलावा कोई और भी होंगी, वहां पर वो अपना business idea कोड करता है and people provide feedback to them. Okay, so market research is also a good tool, जिसमें क्राउड पिकर, गूगल ट्रेंड्स है, ये सारा कुछ आपके ऑनलाइन टूल्स है। ओके, मार्केट रिसर्च भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस, गूगल कस्टमर कंज्यूमर सर्विस, सर्वे मंकी, ये डिफरेंट सर्वे प्रोवाइडर्स हैं, या क्यूए साइट्स, कोरा, स्टैक ओवरफ्लो। इसके अलावा और क्या चीज़ है, आप भी बता सकते हैं कोई अच्छा टूलिस्ट और सिंपल टूल जो आपने कभी यूज भी किया हो, या अक्सर आपको भी, आप पर भी वो टूल यूज किया जाता है? जी, सब, एनीवन अवेलेबल? कहाँ चले गए सब? जी, कोई है ऑनलाइन? मैंने आपसे क्या पूछा अभी? मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई टूल जिससे आपका फीडबैक लिया जाए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि लेटेस्ट में तो गूगल फॉर्म्स एक बड़ा अच्छा और सिंपल टूल है, राइट। डायरेक्ट फीडबैक, आप उसमें अपने कुछ क्वेश्चंस ऐड करें इसी से रिलेटेड, एंड यू कैन गेट दैट फीडबैक, आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ वेरी सिंपल टूल। ये जो है ये थोड़े से एडवांस टूल्स हैं और दे आर डेडिकेटेड टू बिजनेस आइडियाज, राइट। Okay, so first module is cleared. A product service feasibility analysis. जो feasibility analysis का first module था, that is cleared up till this point. Now we are starting industry slash target market feasibility analysis. Okay, first of all, anybody can anybody explain the difference between an industry and target market? वट आपके जहन में जो भी है, जरूरी नहीं है कि आपने कोई पेट डेफिनेशन बतानी है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंडस्ट्री एंड वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टारगेट मार्केट? एग्जाम्पल दें। हम्म। हम्म, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अगर इसको हम सिंपल करें कि सबको समझ आ जाए, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, क्लोथिंग इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री, कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। ओके, अब उसमें
बच्चों के कपड़े बनाती है अगर वो इंडस्ट्री, दे आर टारगेटिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एज, राइट? सो वो दैट इज डेडिकेटेड टू द चिल्ड्रन, एंड योर टारगेटेड मार्केट इज द चिल्ड्रन। ओके, सो ये एक सिंपल अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। पर्पस क्या है इसका? इज एन असेसमेंट ऑफ ओवरऑल अपील ऑफ द इंडस्ट्री एंड द टारगेट मार्केट फॉर द प्रपोज बिजनेस। क्या जो हमने बिजनेस प्रपोज किया है इसकी इंडस्ट्री और टारगेटेड मार्केट में कोई अपील है या नहीं? अब हमने इसको असेस करना है, इसको एनालाइज करना है। So for that, an industry is a group. So देखते हैं क्या है? An industry is a group of firms producing a similar product or service. ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि क्लोथ्स की, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स, ये इंडस्ट्री है, ये पूरी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, जहां पर भी आप जाएं तो आपको कपड़े की इंडस्ट्री मिलेगी। आप कोई इसमें ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या कोई एक नई चीज लॉन्च कर रहे हैं, सो फॉर दैट आपकी इंडस्ट्री जो टारगेटेड इंडस्ट्री होगी दैट विल बी क्लोथ इंडस्ट्री। ठीक है, और उसके अंदर अब आप क्लोथ्स किस किस्म के डिजाइन कर रहे हैं, क्या कोई स्पेसिफिक चीज है, दैट विल बी योर टारगेटेड मार्केट। आप किन लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं या वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं उस पूरी इंडस्ट्री के अंदर से। ओके, so इसके लिए we have two things. The first one is industry attractiveness, and the second one is target market attractiveness. Okay, so let's see. Industry attractiveness. Industries varies in terms of their overall attractiveness. In general, the most attractive industries have the characteristics depicted on the next slide. We shall see कि most attractive industries कौन सी होती हैं, मतलब कि जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, या वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर प्रोडक्ट लॉन्च करने का फायदा होगा। ओके, particularly important the degree to which environmental and business trends are moving in favor rather than against the industry। ठीक है, सो हम ऐसी इंडस्ट्री को हमारा टारगेट, मतलब इसका खुलासा ये है कि वी वांट टू टारगेट एन इंडस्ट्री जहां पर जो इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स हैं और बिजनेस ट्रेंड्स हैं, ठीक है, वो उस इंडस्ट्री के फेवर में जा रहे हैं rather देन उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है। ओके, सो अ यंग रेदर देन ओल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिसको टारगेट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, दैट शुड बी यंग इंडस्ट्री। ओके, बहुत पुरानी ना हो, इसमें मुराद ये है कि सैचुरेटेड इंडस्ट्री ना हो, वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री ना हो। ओके, अगर ऐसा है तो दिस मींस देयर इज अ वेरी लेस चांस कि आपके प्रोडक्ट को वहाँ ब्रीथ इन करने का मौका मिलेगा। ओके, बिकॉज वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री। ओके, सिमिलरली आर अर्लियर रेदर देन लेट इन देयर लाइफ साइकिल। अब मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोग इस लाइफ साइकिल के बारे में किसी दूसरे कोर्स में पढ़ रहे हैं या नहीं, बट इट इज़ लाइक दिस कि आपका स्टार्ट ऑफ बिजनेस, फिर एक उसका पीक आता है बिजनेस का, राइट, एंड फिर फॉल आता है, डाउनफॉल। सो वी वांट दैट योर टारगेटेड इंडस्ट्री इज इन अर्ली ऑफ इस लाइफ साइकिल। ठीक है, मतलब यहाँ हो या यहाँ पर हो, ऐसा ना हो कि इस रीजन में आप ऐसी इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं जो इस रीजन में हो। ओके, सो आर फ्रेगमेंटेड रेदर देन कंसंट्रेटेड। दिस मीन्स कि आपकी इंडस्ट्री में एक कोई एक, फॉर एग्जांपल अगर हम कपड़े की इंडस्ट्री की बात करें, सो देयर आर numerous kinds of clothes, right? फैंसी क्लोथ्स, फलाना लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, किड्स के लिए, देयर इज अ वैरायटी, राइट? सो ऐसा नहीं कि वो एक कंसंट्रेटेड बस एक ही टॉपिक है या एक ही प्रोडक्ट है जो कि बन रहा है वहां पर। ओके, सो आर ग्रोइंग रेदर देन श्रिंकिंग। अगेन आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही हो, उसके जो डिमांड है वो ग्रो कर रही हो। ठीक है, देखिए कपड़ों की अगर हम एग्जांपल लें, बिकॉज अब मैं उस एग्जांपल को लेकर चल रहा हूँ, तो दैट विल डेफिनेटली ग्रो, राइट? कभी ऐसा तो नहीं होगा कि कपड़े की जरूरत खत्म हो जाएगी। ठीक है, जब तक ह्यूमन काइंड है
आपको क्लोथ्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। Are selling products and services that customers must have rather than want to have. Okay, so again, are selling products and services that the customer must have. अब इस must have से क्या मुराद है? Must have means कि एक अच्छा डिसेंट क्लोथ वेयर करना, सूट वेयर करना हर इंसान की ज़रूरत है, राइट। आप स्कूल में आते हैं, आप एक डिसेंट सूट पहन कर आते हैं, ठीक है। आपके टीचर्स सेम, यही सिनेरियो है। दैट इज अ मस्ट हैव, ठीक है। एंड देर आर सम थिंग्स विच यू वांट टू हैव। फॉर एग्जांपल, आप कोई फैंसी क्लोथ पहनना चाहते हैं, ओके, कोई एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स पहनना चाहते हैं, ये जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा आइडिया होगा इन चीज़ों का, ठीक है। तो वो फिर आगे से आपकी दे वांट टू हैव दैट, दैट इज नॉट अ मस्ट हैव, ठीक है। सो हमारा जो फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन द मस्ट हैव थिंग्स, ओके। आर नॉट क्राउडेड, क्राउड ना हो इस इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल, इस इंडस्ट्री को हर कोई अप्रोच ना कर रहा हो, ओके। अगर हर कोई अप्रोच कर रहा है, दिस मीन्स कि दिस इंडस्ट्री विल बिकम सैचुरेटेड वेरी फास्ट, सो वहाँ फायदा नहीं हमारा। हैव हाई rather than low operating margins, okay, so they should have high operating margins, are not highly dependent on the historically low price of key raw materials, यानी कि आप उस इंडस्ट्री का हाईली डिपेंडेंस ना हो लो प्राइसेस पर रॉ मटेरियल की, ठीक है। मतलब कि रॉ मटेरियल की इफ देयर इज अ फ्लक्चुएशन in the price of raw material, that industry has the quality to sustain it, okay. Okay, next and last slide for today, target market attractiveness क्या चीज है? The challenge is identifying an attractive target market is to find a market that is large enough for the proposed business but yet small enough to avoid attracting larger competitors, ठीक है। सो अब जब हम टारगेट मार्केट की तरफ आते हैं, हेयर वी हैव टू बी मोर केयरफुल कि ना हम किसी इतनी छोटी टारगेट मार्केट में चले जाएं कि जहां पर गुंजाइश ही ना हो, राइट, या आपसे बड़ा कॉम्पिटिटर उस तरफ ना आने लग पड़े, और ना इतनी लार्ज हो, लेकिन सॉरी, इतनी स्मॉल होनी चाहिए, इतनी स्मॉल होनी चाहिए आपकी टारगेट मार्केट कि वहाँ जो लार्जर कॉम्पिटिटर्स हैं वो ना आए, ठीक है। बट फिर इतनी लार्ज भी हो कि वहाँ जो आप बिजनेस प्रपोज करना चाह रहे हैं तो उसका कोई फायदा भी हो आपको, राइट। तो assessing the attractiveness of target market is tougher than assessing the attractiveness of the entire industry, okay, so ये difficult task है this one. Often considerable ingenuity must be employed to find information to assess the attractiveness of specific target market. Okay, so we shall see कि हम कैसे कर सकते हैं इसको जब हम एक perform करेंगे analysis. Okay, I think we should stop here.